آغاز کرتے ہیں پی ٹی آئی مارچ سے متعلق سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت سے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی مارچ کے خلاف سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی۔ کہا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے موقف کے بعد حکم جاری کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ مارچ سیاسی مسئلہ ہے جس کا سیاسی حل ہو سکتا ہے۔ معاملے میں عدالتی مداخلت قبل از وقت لگتی ہے۔ واضح طور پر آئینی خلاف ورزی کا خطرہ ہو تو عدلیہ مداخلت کرے گی۔ شہزاد علی کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی مارچ کو سیاسی مسئلہ اور اس معاملے میں عدالتی مداخلت کو قبل از وقت قرار دے دیا۔ مسئلے کا سیاسی حل ڈھونڈنے کا مشورہ۔ باجوڑ اور لکی مروت میں فورسز پر حملوں اور مارچ میں اسلحہ لانے کی آڈیو سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ وفاق اور صوبوں کے تعلقات کی صورتحال کو سنجیدہ معاملہ ٹھہرایا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی درخواست پر سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو شارٹ نوٹس پر طلب کیا گیا۔ جہانگیر جدود نے عدالت کو بتایا پی ٹی آئی کے مارچ کے لیے خط پر انتظامیہ نے تاریخ، وقت اور جگہ کے متعلق پوچھا تھا جس کا جواب نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کی خون ریزی کی باتوں اور وزیر آباد واقعے کے بعد مارچ کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ عدالت نے حکومتی سینیٹر کی درخواست غیر مؤثر قرار دے دی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے استدعا کی کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے عدالت کی مداخلت چاہتے ہیں۔ وفاق نے صوبہ پنجاب کو آرٹیکل 149 کے تحت خط بھی لکھا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال سے پریشان ہیں۔ آرٹیکل 149 کے تحت وفاق کا صوبوں کو خط بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے۔ ملک میں ہنگامہ نہیں، امن و امان چاہتے ہیں، لیکن ایسا حکم دینا نہیں چاہتے جو قبل از وقت ہو اور اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ شہزاد علی، سما، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے راستوں کی ممکنہ بندش کے خلاف تاجروں کی درخواست کو پی ٹی آئی جلسہ این او سی کیس کے ساتھ یکجا کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہائی ویز اور موٹر ویز پر وفاق کا کنٹرول ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ کہہ دے کہ موٹر وے پر دھرنا دینا ہے اور وہاں کھڑا ہو جائے۔ اس طرح کی چیزوں پہ فوری ایکشن لینا ہوتا ہے۔ سڑکیں بند کریں گے تو تجارت بھی متاثر ہوگی۔ دھرنا کیس میں فیصلہ دیا تھا کہ تمام جلسے پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی بھی مقیم ہے۔ سفارتی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔ عام شہریوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ اس درخواست کو پی ٹی آئی درخواست کے ساتھ یکجا کر دیتے ہیں۔ دونوں درخواستوں پر ایک ساتھ سماعت جمعے کو ہوگی۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں، حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے نہ تو تقرری پر اعتراض ہو سکے گا بلکہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ آپ کو بتائیں حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ اس سے نہ تو تقرری پر اعتراض ہو سکے گا بلکہ سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اہم تقرریوں کی کابینہ سے منظوری لینے کا یہ حکم دے رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف نے معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم طے شدہ طریقہ کار کے تحت فیصلہ کریں، اتحادیوں نے ایسا پیغام دیا ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ وزیر اعظم کو کابینہ سے منظوری لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ عثمان، نئی تجویز کس کی طرف سے سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، حکومتی حلقوں میں اہم تقریر سے متعلق نئی تجویز جو سامنے آئی ہے، حکومتی وزراء کی جانب سے یہ تجویز جو وزیر اعظم کو دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی تقریر کی منظوری کابینہ سے لی جائے اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے کسی فورم پر انگلی بھی نہیں اٹھ سکے گی، اور سپریم کورٹ نے اہم تقریروں کی کابینہ سے منظوری کا آرڈر جو ہے وہ بھی دے رکھا ہے۔ اور اسی حوالے سے پیپلز پارٹی اور جو جے یو آئی ہے انہوں نے یہ معاملہ وزیر اعظم پر چھوڑنے کی حمایت کی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم طے شدہ طریقہ کار کے تحت فیصلہ کریں۔ یہ پیغام اتحادیوں کی جانب سے وزیر اعظم کو دیا گیا۔ تو چونکہ اب یہ جواز بنایا گیا حکومتی وزراء کی جانب سے کہ کابینہ سے اہم تقرریوں کی منظوری لی جاتی ہے، تو اس لیے یہ فورم جو ہے اسی کام کے لیے بھی استعمال کیا جائے، اور جب وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی تو کسی فورم پر انگلی نہیں اٹھ سکے گی، کوئی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل کے لیے عثمان خان۔ اور وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت بہت بہتر ہے۔ شوکت خانم اسپتال کی ٹیم آج دوبارہ ٹیسٹ اور ایکس رے کرے گی۔ لوگوں کو زخموں کا یقین دلانے کے لیے ویڈیو جاری کرنی پڑی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اطلاع کے مطابق یہی کہ آج ان کے باقی ٹیسٹ وغیرہ، ایکس ریز وغیرہ آج ہونے ہیں، اور جو رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ہی پھر کچھ ہم بتا سکیں گے کہ خان صاحب کو کب موومنٹ کی پرمیشن ملے گی۔ دیکھیں نا، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلے تو یہ شک تھا جو ہمارے ماشاءاللہ ہمیں تو
सुन सुन के भी हमारे कान दुख जाते हैं। गोलियां लगी हुई हमने देखी, तकलीफ भी देखी, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ माशाल्लाह जड़े है ने उस पासे दूसरे पासे बैठे, वो फरमाने ने गोली पता नहीं लगी नहीं लगी, फिर हमें दिखाना पड़ा कि गोली लगी है। इमरान खान पर फायरिंग की GIT पर वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात महकमा दाखिला पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात से सीनियर हुकाम को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार देते हुए नज़रसानी की सिफारिश की है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि GIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे शामिल होना ज़रूरी है। अगर इंटेलिजेंस के नुमाइंदे शामिल ना हुए तो ये पंजाब के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कहलाएगी। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा ने वफाक के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। वफाक के मुरासले को अब सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान के इजलास में रखा जाएगा। और आपको बताएं, इमरान खान हमला केस की GIT ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए बगैर काम शुरू कर दिया है। GIT के 2 अरकान वज़ीराबाद पहुंचे और जाए वक़ुआ का मुआयना किया। GIT कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर 2 रोज़ में वज़ीराबाद का दौरा करेंगे। जहांगीर खान से मज़ीद जानेंगे। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। विभाग की जानिब से इस मुश्तरका तहकीकाती टीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और महकमा दाखिला की जानिब से भी हिदायत की गई कि विभाग के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है, इन्हें दूर किया जाए। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर GIT ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। GIT के 2 अहम अरकान ने वज़ीराबाद में जाए वक़ुआ का दौरा किया है और मज़ीद डिजिटल शवाहिद हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स की निशानदही भी की गई है। जो कन्वीनियर है GIT के गुलाम महमूद डोगर, जो कि CCPO लाहौर भी हैं, वो भी आइंदा 2 रोज में जाए वक़ुआ का वज़ीराबाद में दौरा करेंगे और वहाँ पर जो अफसरान हैं उनको टास्क भी सौंपे जाएंगे। जबकि जो मुलजिम नवीद है उसको भी जल्द अदालत में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाएगा और फिर GIT जो है बराह रास्त मुलजिम तक रसाई हासिल करके इस वाक़े की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बता दें कि GIT पर वफाक के खदशात अभी तक दूर नहीं किए जा सके हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान। पंजाब के साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि दोस्त मुल्क से मिलने वाला तोहफा बेचकर पूरे मुल्क की इज्जत को मजरूह किया गया। पंजाब की कठपुतली हुकूमत ने डेंगू पर काबू पाने के बजाय आवाम को अल्लाह के रहमो करम पर छोड़ दिया है। तमाम खदशात जिनका इज़हार मैं आपके सामने यहाँ पे करता रहा हूँ वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की हुकूमत जिस सूबे में गई है उस सूबे में डेंगू कंट्रोल से बाहर हुआ है। दर्जनों की तादाद में मासूम लोग जो है वो खाल की गिरी से जा मिलते हैं। पंजाब में 20,000 से ज्यादा लोग कंफर्म हो चुके हैं। जो ये कठपुतली हुकूमत है ये कहीं काम करते नजर आ रही है? पंजाब को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया गया है। हमने 7-8 साल इस सूबे में डेंगू को मैनेज किया है। हमने ना कभी रियासत मदीना की बात की है। वैसे वज़ीर आज़म के जो हमारे एक दोस्त और मोहसन मुल्क सऊदी अरब ने तोहफा आपके हवाले किया था, उसकी कहानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वकार मजरू है। मुस्लिम नूर ने हमेशा इस बात को प्रूव किया कि जब भी हमारी हुकूमत आई है हमने मईशत भी बेहतर की है और बाकी शोबों में भी बेहतर काम किया है। और आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल IG पंजाब ने बताया कि दरियाए सिंध के छोटे जजीरों में 19 के करीब जराइम पेशा ग्रुप मौजूद हैं। एडिशनल IG पंजाब के मुताबिक जराइम पेशा ग्रुपों के पास 250 के करीब कारिंदे हैं। यहाँ फौज और रेंजर्स भी ऑपरेशन कर चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम थानों को बख्तरबंद गाड़ियाँ दी जाएं, पुलिस में सियासी मुदाखलत रोकने के लिए कवानीन बनाए जाएं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। इजलास में अहम तकरीर समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के नाम की भी मुशावरत होगी। आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए तलबा और तालिबात ने इस्लामाबाद में वॉक की। तलबा ने मुसल्लह फ़ौज का भरपूर साथ देने का अज़म जाहिर किया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्कूलों के तलबा और तालिबात पाक फौज से यकजहती के लिए मैदान में आ गए। शुरका के हाथों में बैनर्स उनके दिली जज्बात के अक्कास थे। उन्होंने जुबान से भी सिक्योरिटी फोर्सेस से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुझे फख्र है अपनी पाक फौज पे और मेरा बचपन का सपना कि मैं बड़े होकर आर्मी बनूं। वॉक में शरीक तलबा ने वतन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर फौजी जवानों का शुक्रिया अदा किया और उनकी कुर्बानियों को सराहा। आज तो हमने
हमने सिर्फ 5 मिनट वॉक किए और हमें बहुत गर्मी लगी है, लेकिन वो रोज बहुत देर तक वॉक करते हैं और वो भी सिर्फ हमारे लिए। पाक फौज के लिए की है और इंशाल्लाह उनको सलामत रखे। पाक फौज वन ऑफ द बेस्ट फौजों में से आती है, पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट फौज है वो, और पाकिस्तान जिंदाबाद। तलबा और तालिबात का कहना था पाक फौज हमारा फख्र है, पूरी कौम की तरह वो भी हर किस्म के हालात में उसके शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जान सारी का अफगान दहशतगर्दों की जानिब से अमरीका का छोड़ा असलहा इस्तेमाल करने का इंकशाफ कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका पूरी कुव्वत और जदीद टेक्नोलॉजी से मुकाबला कर रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान 2001 से एक दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व है। ये जंग हमारी नहीं थी मगर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई, और ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो इस वक्त चल रहा है, ये आप ज़रूर इस बात को समझें कि ये एक वॉर थी, एक जंग थी जो अब एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, यानी उसका लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया है। 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत का चेंज हुआ, उसके बाद बहुत सारे तालिबान वहाँ से जो जेलों के अंदर थे, दहशतगर्द जो जेलों के अंदर थे, वो सारे के सारे रिहा हुए। अमेरिकन फोर्सेस का छोड़ा हुआ असला था, कई लोगों के हाथ में लगा, और उस असला को वो अब खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी सुपीरियर मैन पावर, सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर कैपेसिटी से तमाम को हम शिकस्त देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों का ऑनलाइन डेटा लीक हो गया। हैकर्स मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए ले उड़े। रवा बरस FIA साइबर क्राइम में ऑनलाइन फ्रॉड के 1100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में देखिए। मुहाफिज हैकर्स के निशाने पर। फैसलाबाद में पुलिस मुलाजमीन का डाटा लीक हो गया। हैकर्स ने थाना वुमेन की SHO समेत 15 लेडी कांस्टेबल्स और 3 मर्द एहलकारों के अंगूठे के निशानात हैक करके लाखों रुपए निकाल लिए। मुलाजमीन के मुताबिक इनका डाटा डिपार्टमेंट से चोरी हुआ। पुलिस के ऑफिसर्स हैं जो लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके अलावा ऑफिशियल स्टाफ है जो हमारे ऑफिस का, बैंक से कोई ट्रांजैक्शंस की गई हैं तो उस पर FIA को एप्लीकेशन दी है। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक रवां बरस अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 1100 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 300 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सिलिकॉन अंगूठे भी बरामद किए गए हैं। IT माहिरीन के मुताबिक ऑनलाइन सिक्योरिटी सिस्टम की कमजोरी बायसे तशवीश है। कुछ बैंक तो वैसे ही 3D सिक्योर नहीं है। जब वो 3D सिक्योर नहीं है तो वो आपको कोई भी वेरिफिकेशन नहीं आती, और इवन जो 3D सिक्योर भी हैं उनके अंदर से भी वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी जो ऑनलाइन ऐप है वो किसी भी ऐसे सिस्टम में ना खोलें जो आपकी मलकियत ना हो, क्योंकि वो सिस्टम से भी आपकी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। अंगूठे के निशानात चोरी होने के बायस ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वाले मुतासरीन ATM कार्ड की सहूलत से महरूम हो गए हैं। बैंक की जानब से इन्हें सिर्फ चेकबुक इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर नदीम उर रहमान तनज़्ज़ुली केस में जवाब जमा कराने में ताख़ीर पर एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस की साजिश की है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, कारकर्दगी ऐसी रही तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी करना बंद करके बराह रास्त सेक्रेटरी से जवाब तलब करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक। सिंध हाई कोर्ट में सिविल अस्पताल के डॉक्टर नदीम उर रहमान की तनज़्ज़ुली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध दफ्तर की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए, कारकर्दगी ऐसी रही तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी करना बंद करके बराह रास्त सेक्रेटरी से जवाब तलब करेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने 1-2 बार नहीं 8 बार इल्तवा मांगा। दूसरे केसेस में भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। जवाब जमा कराने में इतनी ताखीर होगी तो अदालत फैसला कब करेगी? हमें अफसरान को बुलाने और उनकी सरजनिश का शौक नहीं, लेकिन अदालत को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। एडवोकेट जनरल सिंध भी जवाब जमा कराने में ताखीर को तस्लीम करते हैं। कुछ रिस्पॉन्स फाइल करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं,
इस वजह से। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने अदालत से मुआजरत की और बरवक्त जवाब जमा कराने के मामले पर मैकेनिज्म बनाने की यकीन दहानी कराई। चीफ सेक्रेटरी ने महकमा जाती कार्रवाई से अदालत को आगाह किया और बताया गफलत बरतने पर सेक्शन अफसर मुजफ्फर समेत 4 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। अदालती नोटिस से बर वक्त आगाह न करने पर सेक्रेटरी सेहत से भी वजाहत तलब कर ली है। डॉक्टर नदीमुर रहमान ने रिटायरमेंट से 4 रोज पहले तरक्की का नोटिफिकेशन मंसूख करने पर चीफ सेक्रेटरी के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची में KMC के 38 कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए जगह खत्म हो गई है। शहरी अपने प्यारों की तदफीन के लिए फलाही तंजीमों के कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध काबीना ने बड़े कब्रिस्तानों की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। यूं तो कराची का दिल बहुत वसी है जो हर आने वाले को अपने दामन में समेट लेता है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के बाइस जहां रिहाइश के लिए जगह कम पड़ चुकी है, वहीं तदफीन के लिए कराची के कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं रही है। बल्दिया-जुमा कराची के 38 कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं, लेकिन सकी हसन का कब्रिस्तान हो या पापोस्ट नगर का कब्रिस्तान, KMC ने जगह खत्म होने का कोई बैनर या बोर्ड नहीं लगाया है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज मजहर खान कहते हैं हुकूमत से जगह मिलते ही नए कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। हमने हर डिस्ट्रिक्ट पे 400 एकड़ ज़मीन मांगी है, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ है, उसमें तो बहरहाल लैंड नहीं है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें ज़मीन दे दें ताकि नए ग्रेवयार्ड जो है उनको इस्टेब्लिश किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी कहते हैं कब्रिस्तान के लिए जमीन की निशानदेही कर ली गई है। जमीन आइडेंटिफाई की जा चुकी है। उस हवाले से सिंध काबीना ने एक और फैसला किया था कि एक शहर खामोशा अथॉरिटी बनाई जाए जो कि मॉडर्न बुनियादों पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ कब्रिस्तान बना सके। सरकारी कब्रिस्तानों में जगह खत्म होने के बायस शहरी फलाई अंजुमनों के कब्रिस्तानों में तदफीन करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब शहरियों को कब्रें लाखों रुपए में फरोख्त होने की शिकायत भी बढ़ गई हैं। कैमरामैन फैसल अगाई और फरहान यूसुफ के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। वेलकम बैक। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का तीसरा रोज़ पाकिस्तान में तैयार करदा फ्री फॉल सिमुलेटर और बुलेट प्रूफ स्पेशल ऑपरेशनल व्हीकल मरकज़े निगाह बन गए। वज़ीर आला सिंध ने भी एक्सपो सेंटर का दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में जारी आलमी दिफाई नुमाइश के तीसरे रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक्सपो सेंटर का दौरा किया। वो मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए और पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लाए गए आलात हर्ब पर ब्रीफिंग ली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था दिफाई नुमाइश सिंध पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में मददगार साबित होगी। दिफाई सनत के शोबे में पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत मौजूद है। इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना और दुनिया में इस फील्ड के अंदर एक मेजर रोल करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में तैयार किया गया फ्री फॉल सिमुलेटर भी दिफाई नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है, जो 3 से 25,000 फीट तक की बुलंदी से स्काई डाइविंग करने वालों की तरबियत के लिए निहायत मुफीद है। इस तर्ज का पहला सिमुलेटर इन्होंने RDE ने बनाया है। इसमें मेन फ़ायदा ये है कि जो जंपर्स चीज़ 9 से 15 जंपों में सीखते थे वो अब ये 4 से 5 जंपों में सीख पा रहे हैं और हमारा जो कैजुअलिटी रेट है वो भी कम हुआ है। दुश्मन की सफ़ों में घुसकर हमला करने की सलाहियत रखने वाली बुलेट प्रूफ स्पेशल ऑपरेशनल व्हीकल भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिससे न सिर्फ फायरिंग बल्कि रॉकेट भी फायर किया जा सकता है। आलमी दिफाई नुमाइश में नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने भी स्टॉल कायम किया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नासिर ज़िया कहते हैं NLC ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए हम वक्त तैयार है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने वो सोल्यूशन जिसे हम एंड टू एंड सोल्यूशन बताते हैं, जिसमें हम रोड के ज़रिए, समंदर के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए तमाम किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो हमें अपने वेयर हाउस पे बुलाएं, अपनी फैक्ट्री में बुलाएं और हमसे ये चीज़ ट्रांसपोर्ट करवाएं। आलमी दिफाई नुमाइश में शरीक मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद पाकिस्तानी दिफाई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। नुमाइश कल भी जारी रहेगी। कैमरामैन फैसल अगाई और इमरान शाहिद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।
कराची एक्सपो में जारी आइडियाज़ 2022 के तीसरे दिन तुर्किश एरोस्पेस का स्टॉल तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तुर्की के स्टॉल में 5th जनरेशन तैयारे का मॉडल लोगों की दिलचस्पी समेट रहा है, जो 1 मिनट में 60,000 फीट तक जाने की सलाहियत रखता है। रेहान अहमद से तफसील जानते हैं। जी रेहान। जी, दिफाई नुमाइश 2022 के अंदर पाकिस्तानी स्टॉल्स के साथ हथियारों के बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इनमें एक स्टॉल जो बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है हाज़रीन की, वो है टर्किश एरोस्पेस का स्टॉल, और उसके ऊपर रखा जाने वाला टर्किश जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आवाम की तवज्जो का मरकज़ है। इस जहाज़ का नाम है टर्किश फाइटर, और ये इस वक्त प्रोडक्शन के मराहिल में यानी तैयारी के मराहिल के अंदर है। 2025 में ये आसमानों पर परवाज़ करेगा। ये 5th जनरेशन जहाज़ है जो दुनिया में बहुत कम ममालिक के पास हैं, और ये जहाज़ 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट तक परवाज़ कर सकता है। ये इसकी रफ्तार होती है, और इसके ऊपर जो है ये तुर्की की अपनी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये बनाया गया है, और अवाम इस स्टॉल के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे थे आप। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन समेत मुमलिकत की हज़ारों मसाजिद में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने बारान रहमत के लिए मुल्क भर में जुमेरात के रोज़ नमाज इस्तिस्का अदा करने की हिदायत जारी की थी। सलातुल इस्तिस्का यरहमुकुमुल्लाह। या अल्लाह, बारान रहमत बरसा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर ममलिकत की तमाम मसाजिद में जुमेरात के रोज़ नमाज इस्तिस्का अदा की गई। हरम मक्की में मस्जिद हराम के इमाम व खतीब शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने नमाज इस्तिस्का की इमामत की। नमाज के बाद शेख अस्सुदैस ने खुतबा दिया और गिरिया उजारी के साथ अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई दुआ कराई। हरम मदनी में मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बाईजान ने नमाज इस्तिस्का की इमामत की। नमाज के बाद शेख अल बाईजान ने खुतबा दिया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर इज्तिमाई दुआ कराई। वकाशिफल कुर्बा अंतर रहीमुल जवाद अंतर रहीमुल जवाद वनहनु अबीदुक वमा लना गैरुक नशकू इलैका ضعफना वक़िल्लत हीलतिना। नमाज इस्तिस्का की अदायगी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम की तालीमात के मुताबिक ऐसे मौके पर हर फर्द को अल्लाह ताला के हुजूर अपने गुनाहों से सच्ची तौबा और इस्तगफार तलब करना चाहिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज़ में 3 रोज़ बाकी है। मिनी ब्राज़ील लियारी में इस वक्त कैसा माहौल है, समा के नुमाइंदा हुज़ैफा खान से जानते हैं। जी हुज़ैफा, आगाह कीजिएगा। जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में अब सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं और मैच तो कतर में हो रहे हैं, लेकिन जब भी हम फुटबॉल की बात करते हैं तो मिनी ब्राजील और लियारी का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। इस वक्त ये देख सकते हैं आप, इस मोहल्ले को सजा दिया गया है, मुख्तलिफ टीमों के फ्लैग्स बनाए गए हैं, झंडे भी यहाँ पे मौजूद हैं, ड्रिबलिंग हो रही है, बड़े बच्चे सब पर जो है वो बुखार चढ़ चुका है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप का। आपसे मैं बात कराता हूँ, सऊदीया का झंडा, अर्जेंटीना का झंडा, ब्राजील, जर्मनी, पहले इनसे पूछेंगे भाई कितनी एक्साइटमेंट है? जी बहुत एक्साइटमेंट, हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये 20 तारीख आ जाए और यहाँ पर हमें जो मुकाबले, सख्त तरीन मुकाबले वो हमें दिखने को मिले। अच्छा बताओ, आपने यहाँ पे मुख्तलिफ टीमों के झंडे बनाए, ट्रॉफी बनाई है, तो क्या आइडिया है यहाँ पे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी? इंशाल्लाह स्क्रीन भी लगेगा 20 तारीख से। आप बहुत ही पुरजोश यहाँ पे मतलब आवाम तैयारियां कर रही है। इंशाल्लाह आप आगे भी देखोगे, जर्मन जीतेगा इंशाल्लाह। कोई जर्मनी का फैन है, ये अर्जेंटीना के भाई, कौन किसको जिता रहे हो? अर्जेंटीना को। ठीक है भाई, कोई अर्जेंटीना का फैन है, कोई बेल्जियम का, कोई जर्मनी का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मिनी ब्राजील है और लियारी में इसी तरह का जोश व जज्बा पाया जाता है। सिर्फ कुछ टाइम बाकी रह गया है, लेकिन जब वहां पे एक्शन शुरू होगा तो यहाँ पे भी एक्शन बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जी